Hello students. So today we are going to start light reflection and refraction unit. Or we can say we are talking about the optics. आज हम optics की study करेंगे. Optics क्या है? It is the branch of science. So specifically we can say that physics that deals with the study of light and its involvement with other matter. So optics is the branch of science or especially we can say physics that deals with the study of light. जो light की study करेगा and its involvement with other matters. Any matter on our universe or on our earth, we can say that reflection और refraction में भी हम यही पढ़ेंगे कि matters के साथ कैसे indulge करता है. That is only the optics. So name of the chapter is light, reflection and refraction. और generally we can say we are studying the optics. Light के बारे में हम study करेंगे. ठीक है. So हम start करते हैं first of all that what is light? Light है क्या? So light is a form of energy. ये क्या है? एक energy है that enables us to see something. In our universe on this earth, we are able to see the objects. हम objects को देख सकते हैं. That is because of the light, which is a form of energy. ठीक है? This is the definition of the light. Now we will study about the light. इसका behavior क्या है, किस तरह से response करती है क्या है. So light. Now हम एक चीज जो बोलते थे कि जैसे हमने साउंड चैप्टर में देखा था, साउंड देखा है हमने कि साउंड इज अ वेव. साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव्स की फॉर्म में, लाइक दिस. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिसिटी जो करंट की हम बात करते हैं, करंट किस फॉर्म में फ्लो करता है? In the form of the particles. For example, these are the electrons. ये क्या है? Particles हैं. One electron will be there, two electron will be there, three electron will be there. This is the particle nature. This is the wave nature, and this is the particle nature. ठीक है. But light क्या है? Light इस दोनों तरह के ही behavior को show करती है. Light sometimes it behaves like a particle, while other it behaves like a wave. This nature is known as wave particle duality. Wave particle duality. Dual मतलब दोनों का nature show करना. That is the nature of the light. Wave particle duality. ठीक है. इसको हम modern theory भी बोलते हैं. As per the modern theory, light behaves as a wave as well as a particle. दोनों की तरह ही behave कर सकती है. That is the wave particle duality. The phenomena that we will study, reflection and refraction, that are only based on the wave phenomena. ये सिर्फ wave phenomena पे ही based हैं. जो particle nature है that is quite different. वो किसी और phenomena में जैसे अगर मैं example लिखूँ तो photoelectric effect. इसमें ये काम आता है. ये टर्म नहीं होगी आपके लिए. बट इसको अगर हम सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूँ तो हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी. जो हम सोलर प्लेट से सनलाइट से जो एनर्जी बनाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर. उसमें हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं. सो बेसिकली टुडे इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट ओनली द वेव नेचर. ठीक है. दिस इज अबाउट द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. अब कुछ और टर्म्स हैं लाइट के बारे में, उनको पहले कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्लेक्शन. वो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए. Now, first of all, source of light. ये लाइट आ कहाँ से रही है? किस तरह के सोर्सेज हो सकते हैं लाइट? फर्स्ट इज द ल्यूमिनस. ठीक है. ल्यूमिनस सोर्स हो सकता है. सेकंड इज द नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. देखो इनका मतलब क्या है. ल्यूमिनस मींस हैव इट्स
ऑन लाइट। ऐसे सोर्स जिनके पास खुद की लाइट है और खुद की लाइट को वो रेडिएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस सोर्स ऑफ द लाइट। फॉर एग्जांपल सन। सन की क्या है, खुद की लाइट है, वो खुद की लाइट को इवॉल्व करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर देयर, जो बल्ब्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं, बल्ब से लाइट निकलती है, दैट इज आल्सो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टार्स आर देयर, that are also the luminous source of energy. They have their own light. Now the non-luminous sources that don't have their own light, जिनकी खुद की लाइट नहीं है, but they become visible due to the light from luminous. इनकी खुद की लाइट नहीं है, ये क्या करेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेके उस पे लाइट ली और उस लाइट को आगे पास किया, दैट इज नोन एज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मून इज देयर, मून डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को यूज करेगा, उस लाइट के कारण वो खुद ग्लो करेगा, एक तरह से हम कह सकते हैं रात को में दिखता है तो ग्लो करता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट टेकन फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसकी खुद की लाइट नहीं है। Now more examples are there. For example, this board is there, that is visible to you because the light is coming from any source, whether it is sun or whether it is electric bulb or whether it is CFL, कहीं से भी लाइट आ रही है, उसके कारण ये चीज विजिबल हो रही है। These all are the examples of the non-luminous. Like more examples you can write: chair, table, planets are there. Planets also do not have their own light. They are just radiating, we can say reflecting the light of the sun. Sun की लाइट को ही वापस कह सकते हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक हमारी टर्म हुई सोर्स ऑफ लाइट। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर देयर, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टर्म की बात करते हैं दैट इज द मीडियम। नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज द मीडियम। मीडियम क्या है? इट इज अ substance or material through which light passes or tries to pass। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट या तो पास कर रही है या पास करने की कोशिश कर रही है, दैट इज ट्राइज टू पास, दैट इज नोन एज द मीडियम। It will be better understood with the help of their examples or we can say types। इनके टाइप्स, इसको मैं तीन टाइप्स में, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूँ मीडियम को: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम कैन बी देयर: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक टर्म्स काफी बार सामने आए होंगे। ट्रांसपेरेंट नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वी कैन अक्रॉस सी अक्रॉस देम। फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक पेपर है या एक हम कह सकते हैं ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, बिल्कुल नहीं है, उसके आसपास हम आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, दैट मींस इट इज द ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास एंड ऑल द लाइट विल पास थ्रू इट, बिल्कुल इसमें से सीधी ट्रैवल करेगी एंड वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट क्लियरली, बिल्कुल साफ दिखेगा। सेकेंड इज द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, लाइट विल पास आल्सो एंड सम टाइम इट विल पार्शियली रिफ्लेक्ट बैक, वापस भी मुड़ जाएगी, कुछ पास हो रही है कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शियली दे आर क्रॉसिंग द थिंग। दिस टाइप ऑफ मीडियम्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी में क्या होगा, कुछ लाइट रेज उसके अंदर पास हो जाएंगी पानी के अंदर। जब फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ अ रिवर और एनी वाटर सोर्स इज देयर, वाटर इज इन द बकेट, बकेट में भी हम मान लेते हैं कि बकेट में वाटर है, उसमें हमें अपना चेहरा दिखता है बट इट इज नॉट क्लियर, बिल्कुल साफ नहीं दिखता, बिकॉज वाटर इज अ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी होगा द इमेज विल बी क्वाइट क्लियर, बिल्कुल साफ दिखेगा, उसके अंदर बिल्कुल साफ दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट द इमेज विल बी foggy और वी कैन से हेजी, धुंधली इमेज दिखेगी उसमें, foggy। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द रूलर, जो हमारा ये स्केल होता है, स्केल में से जब हम देखते हैं तो हमें क्या होता है, धुंधला दिखता है उसमें से, दैट इज द foggy और hazy image because
the medium is translucent. And the last medium is the opaque. For example, this is any opaque medium. No light will pass through it. कोई भी लाइट रे इसमें से पास नहीं करेगी. It means we are not able to see the image. इसमें हमें पीछे का कुछ नहीं दिखेगा. This type of medium is known as the opaque. No image of any object behind them. Opaque substance के पीछे जो भी इमेज होगी वो हमें नहीं दिखेगी. For example, this board is there. You cannot see across it. इसके आर पार नहीं देख सकते because it is opaque. यही अगर इसकी जगह एक प्लास्टिक की लेयर होती, लैमिनेशन पेपर या प्लास्टिक होता, we can see through it. धुंधली दिखती चाहे पीछे की इमेज पर दिखती. That is the translucent medium. So second terminology related to it is medium. First was the source of light, luminous and non-luminous, and second is the medium. Now the next thing, next is the ray of light. Ray of light. Light travels in the form of rays. इस तरह से हम एक लाइट रे को शो करेंगे. ये रे है, इस तरह से ट्रेवल कर रही है लाइट. A single ray is known as the pencil of light. एक सिंगल अगर लाइन ड्रॉ की है, that is only the pencil of light. This arrow shows the direction of the light. किस तरफ लाइट जा रही है. And if there are a number of lines like this, or we can say number of pencils of light are there, that collectivity is known as the beam of light. Pencils of light, or we can say a combination of ray of light is known as the beam of light. That's why when we are using the torch, जब हम torch को use या search lights को use करते हैं, हम कहते हैं कि उसकी जो beam निकल रही है वो सीधी जा रही है, beam है जो वो फैल रही है. ठीक है, अलग अलग तरह के beams होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बाइक्स हैं, बाइक्स के जो सामने जो लाइट्स होती हैं उनकी लाइट काफी फैलती हैं. ठीक है, दैट इज द डिफरेंट नेचर्स ऑफ द बीम दैट वी विल डू नाउ. नेचर ऑफ पेंसिल ऑफ लाइट किस तरह से हो सकती है. ठीक है, देखो वन थिंग इज देयर कि दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट इज देयर एंड पेंसिल्स ऑफ लाइट आर गोइंग लाइक दिस, डिफ्रैक्टिंग, अलग अलग जा रही है. दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट पेंसिल्स. डाइवर्जेंट, डाइवर्स हो रही है, दूर जा रही है. सोर्स, जनरेटिंग सोर्स इज वन बट दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. लाइक जस्ट आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ द बाइक, कि बाइक के जो व्हीकल, बाइक के जो सॉरी हेडलाइट्स होती हैं, दे आर डाइवर्जेंट इन नेचर, डाइवर्स करती हैं उनकी लाइट. ठीक है. सेकंड इज sources are many but the lights are combining at a single point. The lights, rays or light pencils are collecting at a single point. This is beam of light, or this pencil of light is known as convergent pencil. Convergent, converge हो रही है, एक जगह पे इकट्ठी हो रही है. This is in the searchlights. जो टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो एक जगह पे इकट्ठी होती है. That's why they are known as searchlights. किसी भी चीज को ढूंढने के काम आती है, क्योंकि लाइट एक जगह पे इकट्ठी होगी तो क्लियर इमेज बनेगी, वहाँ साफ साफ दिखेगा. And third and last is the parallel beam of light. This is known as the parallel pencil or parallel beam of light. So these are three natures of the pencils of light. They can diverge out, they can converge, and they can be parallel or uniform. जैसे थी वैसे की वैसे ही travel करेंगे. ठीक है. Now the last term, that is known as the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. What does it mean? That light always travels in a straight line in a medium.
किसी भी एक मीडियम में जब तक लाइट ट्रैवल कर रही है, इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग इट विद द रेज, sorry, so that's why we are showing it like this. This is known as the rectilinear propagation. Light always travels in a straight line. ये भी straight line है, एक बार जिस पाथ को इसने पकड़ लिया, we go on that path only. This is known as the rectilinear propagation of light. That light always travels in a straight line. ठीक है. These are some basics about the term or about the chapter light. Now the main topic that starts is from the reflection. Today we will only define these two terms, reflection and refraction. In the next part we will elaborate about them. बेसिक हो गया लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हम डिफाइन और कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट का मतलब लग के वापस आना. फॉर एग्जांपल एनी रबर बॉल इज देयर, ठीक है, उसको हम फेंकते हैं नीचे, तो नीचे लग के वो वापस स्ट्राइक करके वापस आती है, या दीवार पे हम फेंकेंगे तो लग के बाद दीवार पे वापस आएगी. सेम इज विद द लाइट. लाइट व्हेनेवर फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स बैक. लग के लाइट क्या होती है, वापस आती है. दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस. किसी भी सरफेस पे लग के स्ट्राइक करोगे वापिस आना, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द बाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस. ठीक. सेकंड इज द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्ट का मतलब मुड़ना, ठीक है, दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल passing from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट का मुड़ना, बेंड होना, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल यू हैव सीन दैट पानी के अंदर हम फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बाथिंग, ठीक है, नहाते टाइम अगर हम पानी में मग को रखते हैं, वो मग हमें क्या दिखता है, छोटा दिखता है थोड़ा सा, या मग नहीं है तो बकेट का जो बेस है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है. नॉर्मली जो बकेट होगी वो डेप्थ उसकी ज़्यादा होगी, पानी डालने के बाद उसकी हमें डेप्थ थोड़ी दिखती है, गहराई थोड़ी दिखती है. दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये एग्जांपल्स आएंगे, इनको डिटेल में हम करेंगे किस रीजन के कारण दिखती हैं, कितना उठेंगी, कितना नीचे जाएंगी. दैट ऑल वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट्स, बट हियर वी आर जस्ट डिफाइनिंग देम. तो एग्जांपल्स के साथ इसका मतलब बताया आपको. जैसे रिफ्लेक्शन का एग्जांपल के साथ अगर हम मतलब देखें तो वी आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वी आर एबल टू सी अवर इमेज. हमें अपनी फोटो दिखती है, अपनी इमेज दिखती है. दैट इज ड्यू टू द बाउंसिंग ऑफ लाइट. हमारे चेहरे से जो लाइट गई, शीशे पे स्ट्राइक हुई, लग के वापस आई, वी आर एबल टू सी अवर इमेज. दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइट. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट द रिफ्लेक्शन टॉपिक. रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या हैं, रीजन बिहाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, its laws and all about it. Okay, thank you.